بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے مردم شماری کی مدت میں 5ویں بار 15 روز کی توسیع کر دی ہے۔ وفاقی ادارہ شماریات نے مردم شماری کی مدت میں ایک بار پھر توسیع کر دی ہے۔ مردم شماری کی مدت میں 5ویں بار اضافہ ہوا ہے۔ وفاقی ادارہ شماریات نے مردم شماری کی مدت میں 15 مئی تک توسیع کا باقاعدہ مراسلہ جاری کر دیا، جس کے مطابق سندھ میں ٹھٹہ، حیدرآباد اور سکھر، کراچی وسطی، ملیر، کماڑی، شرقی، جنوبی اور غربی میں 15 مئی تک کام جاری رہے گا، جبکہ ملک کے 60 سے زائد بڑے شہروں میں مردم شماری کو جاری رکھنے کے لیے مدت میں 15 دن کی توسیع کر دی گئی ہے۔ کراچی کی آبادی میں ابھی تک 1,76,79,000 افراد کی مردم شماری ہو چکی۔ جماعت اسلامی مردم شماری کے معاملے پر ایک بار پھر ڈٹ گئی۔ حافظ نعیم کہتے ہیں، ہماری جدوجہد بچوں کے مستقبل کے لیے ہے، ہمیں اپنا پورا حق چاہیے۔ کراچی کسی وڈیرے کی اوتاق نہیں، عزت سے مان لو ورنہ ناک رگڑ کر حق دینا پڑے گا۔ تحریک انصاف نے مردم شماری کی دوبارہ گنتی کا مطالبہ کر دیا۔ اسد عمر نے شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ دینے پر ایم کیو ایم کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ تحریک انصاف نے ایم کیو ایم پر غلط مردم شماری تسلیم کرنے کا الزام لگا دیا۔ مقامی ہوٹل میں اسٹیک ہولڈرز کانفرنس سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے خطاب کیا۔ پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل اسد عمر کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ دے کر ایم کیو ایم نے غلطی کی۔ آج سے 2 دن پہلے انہوں نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر دوبارہ اعتماد کا ووٹ دیا۔ انہوں نے کہا جی شہباز شریف زبردست کام کریں، کراچی کا حق پورا انہوں نے کیا ہے۔ K4 انہوں نے رکوا دیا، گرین لائن کی ایکسٹینشن انہوں نے رکوا دی، KCR انہوں نے رکوا دیا، اور مردم شماری میں بھی وہی نتائج بلکہ اس سے بھی خراب نتائج جو پچھلی دفعہ تھے۔ اتنی یہ پرفارمنس پسند آئی کہ انہوں نے دوبارہ اعتماد کا ووٹ دے دیا شہباز شریف کو۔ سابق گورنر عمران اسماعیل نے کہا کہ کراچی کے لوگ اپنے حق کی بات کرتے رہیں گے، چاہے اسے کوئی بھی کون سا بھی رنگ دے۔ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ والنٹری رجسٹریشن کراچی سے ہوئی، اسی شہر سے ہوئی تھی۔ پھر جب یہ حق مانگتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ مانگتا کیوں ہے؟ تو کیا کریں اگر اپنا حق نہ مانگیں تو کدھر جا کے ٹکر ماریں؟ تاجر رہنماؤں عتیق میر، شرجیل گوپلانی، جمیل پراچا اور دیگر نے کہا کہ مردم شماری کے مسئلے پر تاجر تنظیمیں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ کراچی اس وقت اگر آپ یہ بولیں کہ مہاجروں کا شہر ہے یا اردو اسپیکنگ کا ہے، نہیں، کراچی کراچینس ہے، جس میں چاہے پنجابی ہو، چاہے برمی ہو، چاہے بنگالی ہو، چاہے کوئی اور، یہ ہم سب ایک ہی ہیں۔ اگر مردم شماری کا یہی طرز، یہی طریقہ روا رکھا گیا تو اگلی چند مردم شماری کے بعد کراچی ٹھٹھا سے بھی چھوٹا شہر بن جائے گا۔ اسٹیک ہولڈرز کانفرنس کے اختتام پر خرم شیر زمان نے قرارداد پیش کی، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ کچی آبادیوں کے لاکھوں مکینوں کو شمار کیا جائے اور رہ جانے والی 30,000 عمارتوں کے مکینوں کو شمار کیا جائے۔ کیمرامین شکیل خان کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ سندھ حکومت نے 2017 کی مردم شماری منظور کرانے کا الزام پی ٹی آئی، جی ڈی اے اور ایم کیو ایم پر لگا دیا۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے مردم شماری سے متعلق وفاقی حکومت کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ سندھ میں مردم شماری سے متعلق تحفظات پر پی 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 حکومت کا رد عمل سامنے آ گیا۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ کچھ سیاسی جماعتیں اندر سے اور باہر سے اور ہیں، لیکن مراد علی شاہ 2017 سے ہر فورم پر مردم شماری کی مخالفت کرتے آئے ہیں۔ سندھ آرکائیو کمپلیکس میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مرتضی وہاب نے کہا کہ آج ہی وفاقی حکومت نے ایک فیصلہ کیا تو آج ہی وزیر اعلیٰ نے وفاق کو خط لکھ دیا۔ جیسے ہی وزیر اعلیٰ کو یہ فیصلہ کنوے ہوا، آج 30 اپریل کو اتوار کے روز وزیر اعلیٰ سندھ نے ان رائٹنگ اپنا اعتراض اٹھایا وفاقی حکومت کے ساتھ، اور وزیر اعظم پاکستان سے بھی دوپہر میں گفتگو کی کہ کیا منطق ہے کہ اگر کسی تحصیل کی 1.5% اینول گروتھ ہو چکی ہے تو وہاں پہ آپ پاپولیشن کو فریز کر دیں۔ وہ بھائی کانسیپٹ لاجک تو یہ ہونی چاہیے، جتنے بندے ہیں اتنے بندے کاؤنٹ کیے جائیں گے۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی، ایم کیو ایم اور جی ڈی اے نے 2017 کی غلط مردم شماری کو پارلیمنٹ سے منظور کروایا تھا۔ چاہے کمیٹی کے ذریعے ہو، مشترکہ مفادات کاؤنسل کے ذریعے ہو یا پارلیمان کے ذریعے ہو، اس متنازع سینسس کو اپروو کرایا ان لوگوں نے، جو کہ آج پھر صرف پریس کانفرنس اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔
बैरिस्टर मुर्जा वहाब ने कहा कि पीपुल्स पार्टी पर इल्जाम तराशियां बंद की जाएं, पूरा सिंध हमारा है, मर्दमशुमारी को देही और शहरी तफरीक का रंग न दिया जाए। कैमरामैन शकील खान के साथ आजिज जमाली, कराची। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िले कोरंगी का वर्कर्स कन्वेंशन जारी है। खुशखबरी ये बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मेरा कायद जल्द इंशाअल्लाह मेरी पार्टी अपनी पार्टी के साथ मुशावरत करके इंशाअल्लाह जल्द पाकिस्तान में आएंगे और आकर फिर इंशाअल्लाह चौथी दफा वजीर आजम पाकिस्तान बनेंगे। और जिस तरह से 2013 से पहले इस पाकिस्तान में हालात थे, जब अंधेरे थे, जब लोड शेडिंग 18 घंटे बिजली बंद होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि मेरे कायद ने 12,000 मेगावाट 4 साल की हुकूमत में 12,000 मेगावाट बिजली के कारखाने लगाए। ये बताए तो सही जिन्होंने 5 साल हुकूमत की है, इमरान खान साहब और उसकी टीम, ये बताए कि कोई एक मेगा प्रोजेक्ट 4 सालों में, कोई एक मेगा प्रोजेक्ट खैबर से लेके कराची तक, केमाड़ी तक कोई लगाया है तो कोई रिकॉर्ड पे लेकर आए कि काम किया। मेरे कायद ने कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा। पाकिस्तान में तरक्की का जो दौर दौरा था, खुशहाली का जो दौर दौरा था, वो मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आपके कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत का दौर दौरा था। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इंशाअल्लाह पाकिस्तान में तशरीफ लाएंगे। और इंशाअल्लाह उनका, जिस तरह से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये इब्तिदा की गई है आप लोगों ने, कुरंगी वालों, कराची वालों, सिंध वालों, कि हम अपने कायद से दरख्वास्त करेंगे कि मियां साहब आप मेहरबानी करें, ये कराची में रहने वाले आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके खानदान से मोहब्बत करते हैं, कौम की बेटी मरियम नवाज साहिबा से मोहब्बत करते हैं, और ये आपकी आवाज़ है, मरियम नवाज की आवाज़ है ये पूरी कराची जो है। आप मरियम नवाज साहिबा से कहें कि ये एक टेस्ट केस है, हमने करके दिखा दिया है कुरंगी वालों ने, कराची वालों ने, इंशाअल्लाह ताला। तो आप मेहरबानी करें, अपनी बेटी से, हमारी चीफ ऑर्गेनाइजर साहिबा से कहें कि वो कराची तशरीफ लाएं। इंशाअल्लाह हम उनके शान शान कराची में इंशाअल्लाह ताला हम सारे मिल के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िले कोरंगी का वर्कर्स कन्वेंशन इस वक्त जारी है और खिताबात का सिलसिला भी जारी है। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि खेल का मैदान जंग बन गया। कराची के इलाके बागे कोरंगी के करीब खेल के मैदान पर कब्जे की कोशिश, इलाका मकीनों और कब्जा माफिया के दरमियान झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 4 अफराद को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। मुस्तैल अफराद ने मोटरसाइकिलों और रिक्शों को भी आग लगा दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके बाग कोरंगी में खेल के मैदान को कब्जा माफिया से बचाने के लिए इलाका मकीन मैदान में आ गए। अब ये लोग कब्जा माफिया वालों को भगाया जा रहा है यहाँ से, देख लें आप, ये कब्जा माफिया वालों को भगा रहे हैं यहाँ से। शहरी कब्जा माफिया के सामने दीवार बन गए, जिसकी वजह से बाग कोरंगी का इलाका मैदान जंग बन गया। मुजाहिरीन ने एहतजाज के दौरान कब्जा माफिया की जानिब से लगाई गई दीवार को भी गिरा दिया। चेयरमैन UC6 शाह फैसल याकूब कालुड़ो का कहना है कि खेल के मैदान पर कब्जा काबिल कबूल नहीं। मैदान में हफ्ता बाजार लगाया जाता है और नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद किए जाते हैं। ये क्योंकि रिफाई प्लाट है और इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत अरसे से यहाँ एक हफ्ता बाजार लग रहा था, क्योंकि यहाँ ईद नमाज भी होती है। और हमारी कोशिश ये है कि ये खेल का ग्राउंड बन जाए, ईदगाह बन जाए, ताकि इस इलाके के लिए, नौजवानों के लिए एक अच्छी सहूलत हो जाए। कब्जा माफिया की जानिब से फायरिंग भी की गई, जिससे अशरफ नामी शहरी जख्मी हो गया, जबकि पथराव के नतीजे में भी मुतअद्दिद मुजाहिरीन जख्मी हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 4 अफराद को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि 2 फरीकैन को जमीन के दस्तावेजात के साथ जिला इंतजामिया के दफ्तर तलब किया गया है। वाक़े के बाद कोरंगी के मुतासरा इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। कैमरामैन कमर आबिदी के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। कराची टिम्बर मर्चेंट्स ग्रुप ने टिम्बर मार्केट को लोड शेडिंग फ्री करने के लिए 3 मई तक का वक्त दे दिया। सदर कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप शर्जील गोपलानी का कहना है, मुतालबा मंजूर ना हो तो 4 मई से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कारोबार को ताले लगाएंगे और गवर्नर हाउस पर धरना भी दिया जाएगा। हमें सिर्फ दोपहर को 1 से लेकर 2:30 बजे के दरमियान हमारी आजी मार्केट से ज्यादा मार्केट को बिजली दी जा रही है, जो कि लंच टाइम है, और वर्किंग आवर में बिजली ही नहीं दी जा रही। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक लोड शेडिंग की जा रही है। इसके बाद जो है हमारी 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक लोड शेडिंग की जा रही है, और 6 बजे वैसे ही मार्केट बंद हो जाती है। हमने इनसे गुजारिश की है
और पिछली दफा जो मोने सर्विसेज की मीटिंग हुई थी जिसमें इनके तमाम लोग मौजूद थे, वहां पे ये बात हुई थी कि 10 से 6 बजे तक कंटिन्यूस बिजली दी जाए। ठीक है, ऊपर के ओवर खत्म कर दें, नीचे खत्म कर दें। अब इनका जो भी मसला हो, अगर ये मसला हल नहीं होता तो मार्केट तैयार रहे। और मैं कॉल दे रहा हूं 4 मई 2023 को टिम्बर मार्केट हड़ताल पे जाएगी 1.5 महीना मुद्दत पे, और हम यहां से रैली की सूरत में गधा गाड़ियों, ऊंट गाड़ियों, साइकिलों पे गवर्नर हाउस जाएंगे और गवर्नर हाउस के बाहर हम धरना देंगे, क्योंकि गवर्नर साहब अवामी नुमाइंदे हैं, अवामी आदमी की बात करते हैं। इन्होंने अपने गवर्नर हाउस के बाहर घंटी लगाने की भी बात की है कि मैं आपके मसाइल हल करूंगा। मेरा ये मैसेज गवर्नर हाउस तमाम इक़्तिदार में लोगों तक पहुंचे। हमें ये भी इंकशाफ किया गया और नाम दिए गए कि मौजूदा हुक्मरान पार्टी के सियासी लोग टिम्बर मार्केट में लोड शेडिंग करवा रहे हैं, और ये तमाम कमेटी के मेंबरान के सामने बात हुई है कि मौजूदा हुक्मरान सियासी पार्टी ज्यादा से ज्यादा टिम्बर मार्केट में लोड शेडिंग करवा रही है। बल्दिया टाउन में प्राइवेट वॉलमैन के हवाले से शिकायत पर चीफ इंजीनियर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने रिपोर्ट तलब कर ली है, जिस पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बल्दिया टाउन ने प्राइवेट वॉलमैन की मौजूदगी से ही इनकार कर दिया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बल्दिया टाउन की हदूद में कोई प्राइवेट वॉलमैन काम नहीं कर रहा। अगर कोई फर्द गैर कानूनी तौर पर वॉल टेम्परिंग या वॉल ऑपरेशन करता पाया गया तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नाजिमाबाद की जिलाई और बल्दियाती इंतजामिया ने नाजिमाबाद रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के शराक से छोटे पार्क्स में मियावा की तर्ज पर अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे पर काम का आगाज कर दिया। माहौल की बेहतरी के लिए इंतजामिया का ऐसा इक़दाम। शहर कायद में दरख्तों की कमी और फिजाई आलूदगी ने माहौल को तबाह कर दिया, लेकिन अब मकामी इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। शजरकारी के फ़रोग के लिए असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद आसिम अब्बासी की ज़ेर निगरानी छोटे पार्कों में अर्बन फॉरेस्ट पर काम शुरू हो गया है। हमारा फोकस है वो इंक्लोज लोकेलिटीज़ के जो भी पार्क्स हैं, छोटे हों या चाहे वो बड़े हों, उन पे हमारा ज़्यादा फोकस है। इसी तरह का ये खैर नमल सोसाइटी है, वहाँ का एक छोटा सा पार्क है, चारों तरफ देख रहे हैं आप घर हैं। कोशिश यही है कि इसको भी हम उस प्रोजेक्ट 100 में इंक्लूड करके इसको हम डेवलप करें, और ताकि आसपास के जितने रेजिडेंट्स हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। डिप्टी डायरेक्टर महकमा बागात बल्दिया वस्ती आसिफ हुसैन कहते हैं खैरुल अमल पार्क को जल्द मियावाकी पार्क में तब्दील कर दिया जाएगा। हमारी कोशिश है कि इस पार्क में हम सबसे पहले ग्रे वाटर लेकर आएँ। जब ग्रे वाटर आ जाएगा तो फिर हम इसको बाकायदा तौर पे ग्रीन करेंगे और इसकी में अंदर प्लांटेशन भी करेंगे। और ये हमारा जो 100 पार्क का इनिशिएटिव हमने लिया हुआ है, उसके हवाले से ये पार्क का भी हमारी कोशिश होगी कि विद इन 1 मंथ के अंदर हम इसके ऊपर काम अपना शुरू कर दें और इसको बाकायदा बहाल कर दें। नाज़िमाबाद रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के डॉक्टर साकिब का कहना है कि फैसला खुश आइंद है, हमारा ताउन इंतजामिया को हमेशा हासिल रहेगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस पार्क को आबाद करें और इसमें जितनी ग्रीनरी कर सकते हैं वो करें, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हम जितनी हेल्प कर सकते हैं, हम शुरू से डीसी साहब के साथ हम लोग जो कोऑर्डिनेशन में चल रहे हैं, और इंशाल्लाह इसको प्रोजेक्ट को भी जल्द कंप्लीट करेंगे। शहर में हरियाली के फ़रोग के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर काम किया जाए तो बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। कैमरामैन अजलान शिपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। 75 रुपए का नोट आवाम के लिए मुअम्मा बन गया, जो हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। मामला पीपल्स बस सर्विस तक पहुंच गया। कंडक्टर्स मुसाफिरों से 75 का नोट लेने से इनकार कर रहे हैं, जिनका कहना है कि जब नोट चलना ही नहीं है तो क्यों लें। 75 रुपए का नोट चलेगा या नहीं, मसला पीपल्स बस सर्विस तक पहुंच गया। बस सर्विस ने मुसाफिरों से 75 का नोट लेने से इनकार कर दिया। कंडक्टर का कहना है कि डिपो पर जब हम किराया जमा कराते हैं वहां मसला होता है, हमसे कैशियर नोट नहीं लेता, इसी वजह से हम भी मुसाफिरों से नहीं ले रहे। हमारे पास जो कैश होता है ये हम अपनी कंपनी में जाके कैशियर को कैश जमा कराते हैं। तो जब वो 75 का नोट कैशियर ने अमाउंट उनके पास गया तो उन्होंने मना कर दिया, साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि ये 75 का नोट हम नहीं चला सकते। मुअम्मा हल न होने पर मुसाफिर परेशान है। कहते हैं जब स्टेट बैंक ने 75 का नोट निकाला है तो इसे चलना भी चाहिए। हमारे पास 75 का नोट मौजूद होता है, वो ना तो दुकानदार लेता है और ना रेडी वाला। स्टेट बैंक को वाज़ेह हिकमत अमली मरतब करनी चाहिए। बहुत मुश्किलात हो रही है, कोई लेता ही नहीं है, मना कर देते हैं कि नहीं चलना, बंद हो गया। ठीक है। अब परेशान होते हैं, कंडक्टर भी मना कर देता है लेने में, दुकानदार भी मना कर देता है। ठीक है। तो वो जेब में ही रखा रहता है नोट। भाई ये हुकूमत ने बनाया है, हमने तो नहीं बनाया। जो और नोट भी बनाए तो वो भी चल रहे हैं, उन्हें कोई बंद करो भाई, इसको बंद करो। ज़ाहिर बात सामान लेने के लिए वो पैसे दे रहे हैं, ये भी देने हैं। जब ये बनाया है तो ये चलाना ही पड़ेगा।
75 का नोट आवाम के लिए मुश्किलात का बायस बना हुआ है। इस हवाले से स्टेट बैंक को वाज़ेह अहकामात देने की जरूरत है ताकि लोगों का भाम दूर हो। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की ने मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और निकासियाब और क्रॉनिक पॉइंट क्लियर करने के उमूर का जायजा लिया। सैयद शकीर अहमद का कहना था कि बारिश से कबल इंतजामात करने की हिदायत। शहर कायद में मुतवक्का बरसात के पेश नज़र जिला एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मुतहर्रिक हो गए। सईद शकील अहमद ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके बरसाती पानी की निकासी के अमूर का जायजा लिया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की का कहना था कि तेज बरसात की सूरत में सिर्फ यूनिवर्सिटी रोड पर मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। एक जगह पानी जो उर्दू सफारी पार्क के बाद रुकता है, वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा रुक जाता है। इसी तरह नीपा पे पानी रुक जाता है, फिर उर्दू यूनिवर्सिटी के पास रुक जाता है। वहाँ पे ऑलरेडी हमने पंप को डिप्लॉयड कर दिया है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव बल्दिया शर्की राशिद फयाज के मुताबिक तमाम चौकिंग पॉइंट को क्लियर कर दिया गया है और एहतियाती तदाबीर के तहत डी वाटरिंग पंप्स भी मुताल्लिका अमले के हवाले कर दिए गए हैं। DMC इसके हवाले से जो गुलशन जोन है उसके हवाले से जो है यूनिवर्सिटी रोड हमारा मेन जो ट्रैक है वो सारा पूरे जो लीड करता है यहाँ से गुलशन जोन को, DMC ईस्ट को, तो उससे हमारे 3-4 जगह मेन जो पॉइंट है वो सफारी पार्क है, नीपा है, यूनिवर्सिटी रोड का जो हमारा अपना PIA प्लानिटोरियम है, सिविक सेंटर है, तो हमने उसी को फोकस कर रखा है। जो हमारे क्रॉनिक पॉइंट है, चौकिंग पॉइंट है, तो उस पर हमने मैनुअल भी और मशीनरी के थ्रू भी जो है वहाँ पर हमने डिप्लॉय किए हुए हैं और डिवाटरिंग पंप भी लगा हुआ है। बल्दिया शर्की का कंप्लेन सेंटर भी 24 घंटे फाल है, जहां आवाम बारिश के बाद पैदा होने वाले मसाइल के हल के लिए अपनी शिकायत का इंदराज भी करा सकते हैं। कैमरामैन अली मेहदी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। शहर कायद में बादलों और सूरज की आंख मचोली सारा दिन जारी रही। मौसम खुशगवार होते ही छुट्टी का दिन भरपूर तरीके से एंजॉय करने के लिए शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। खुला समंदर और मौसम खुशगवार, शहरियों का हुआ सुपर इतवार। 2 दरिया का साहिली मुकाम जहां बड़े बड़े पत्थरों के साथ ही गहरा समंदर आने वालों का इस्तकबाल करता है। तेज हवाएं खुशगवार एहसास दिलाती हैं और दूर तक फैले समंदर का हुस्न जहनी आसूदगी का सबब बनता है। हमें बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे, ठंडी हवाएं, कभी धूप आ रही है कभी छाँव आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ। जब मच्छी होता है फिर तो लगता है, फिर तो डायरेक्ट लगते नहीं होते, फिर थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है। मछली के शिकार के शौकीन अफराद सुबह से ही 2 दरिया के मुकाम पर आ जाते हैं और समंदर में डोरें डालकर शिकार लगने का इंतजार करते हैं। शिकार में घेसर, दंदिया और दीगर इकसाम की मछलियां हाथ आती हैं। शिकारियों का सारा दिन इसी मशगले में गुजर जाता है। मच्छी तो यहाँ पे हर किस्म मच्छी है, मतलब घिसर भी है, कपरता, दंदे, और अभी तो खैर चढ़ाव नहीं है, अभी चढ़ाव लगेगा। अभी ये उतार में हम लोगों ने पकड़े तकरीबन 8-10 दाने। समंदर की मौजें जहां शहरियों को कुदरत के हसीन मनाजिर से करीब करती हैं, तो इन्हें कुछ लम्हात के लिए शहर की मशीनी जिंदगी से दूर भी ले जाती हैं। कैमरामैन अजमल शाह, कैमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सुबह से अब तक कराची के किस इलाके में कितनी बारिश हुई है, महकमे मौसमियात ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। कराची में आज मुख्तलिफ इलाकों से गरज चमक के साथ हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए, जिसके मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश ओल्ड एयरपोर्ट पर 14.6 मिलीमीटर हुई, कायदाबाद में 6.5 मिलीमीटर हुई, PF फैसल बेस और नाजिबाबाद में 5.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि PF मसरूर बेस 4 मिलीमीटर, किमाड़ी में 3 मिलीमीटर और जिना टर्मिनल पर 2 मिलीमीटर बारिश हुई। अब आपको बताएं कि सिंध हुकूमत और मिल्स मालिकान एक बार फिर आमने सामने आ गए। शहर में आटे के बहरान का खदशा पैदा हो गया। शहर कायद पर आटे के बहरान का खतरा मंडलाने लगा। माशी समेत कई बहरानों के शिकार कराची के बासियों के लिए मसाइल बढ़ने का खतरा। फ्लोर मिल्स मालकान ने फूड डिपार्टमेंट पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगा दिया। बोले 50 लाख में से सिर्फ 2 लाख टन गंदम की बोरियां फराम की गई हैं। शहरी कहते हैं आटे की किल्लत की वजह हुकूमत और फ्लोर मिल्स की मिली भगत है। पाकिस्तान पैदावारी मुल्क होने के बावजूद हम आटे से महरूम हैं। मुल्क जो खुद अपनी गंदम पैदावार है उसकी, और हम दुनिया में 5वें-6ठे नंबर पे पैदावार वाला मुल्क है, और हम ही आटे से भूखे मर रहे हैं। गन्ने की पैदावार में भी हम 7वें नंबर पे हैं, फिर भी हमारे पास चीनी की शार्टेज हो जाती है। बिल्कुल हर घर की ज़रूरत है आटा, आटे के पीछे लोग लाइन लगा के तो ख्याल करना चाहिए सिंध हुकूमत को, यही कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं। फ्लोर मिल्स मालकान ने हुकूमत को 2 मई की डेडलाइन देते हुए आइंदा के लाएमल का ऐलान कर दिया है। कैमरामैन इमरान के हमरा, काविश मेमन, सिटी 21। पेट्रोल की कीमतों में कमी से मुतालिक अहम ऐलान मुतवक्के है। रिक्शा ड्राइवर्स ने हुकूमत से पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी का मुतालबा कर दिया।
महंगाई से तंग शहरियों के लिए खुशखबरी आने का इम्कान। पेट्रोल की कीमतों में कमी से मुतालिक खबरों पर रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं 5-7 रुपए कमी से कोई फायदा नहीं होगा। जब पेट्रोल महंगा करना होता है तो पहले 5-7 रुपए कम कर दिए जाते हैं। अब जब कस्टमर आते हैं हमारे पास, हम उनसे किराए की बात करते हैं। जो हमारा अगर 150 बन रहा है तो वो कोशिश करता है 17-80 यानी 70-80 रुपए में ले जाएं। तो इसलिए कि हम दिन भर की मेहनत करते हैं, हमें भी बहुत मुश्किलात का सामना है, कस्टमर को भी मुश्किलात का सामना है। लेकिन ये 5 रुपये जो कम कर रहे हैं ना, ये नेक्स्ट 15 तारीख को ये बढ़ा देंगे 15 से 20 रुपये। यही खेल रही है हुकूमत, चाहे वो पिछली हुकूमत हो, ये हुकूमत हो, यही कर रही है। 5 रुपए कम कर दिए, फिर आगे जो है ना 15 से 20 रुपए बढ़ा देती है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत होश के नाखून ले और आवाम को बड़ा रिलीफ फराहम करे। गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए, गरीब को मर रही है। पेट्रोल पे ये लोग बढ़ाए जा रहे हैं, कम करने पे आते तो रुपया 2 रुपया कम कर देते हैं, बढ़ाने पे ये 20 रुपया बढ़ा देते हैं। ओगरा ने वफाकी हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल से मुतालिक समरी भिजवा दी है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत में कमी का इम्कान है। कैमरामैन इमरान के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। अब आपको बताएं कि शहर कायद में सब्जियों की कीमतें कहीं कम तो कहीं आसमान पर पहुंच गईं। इलाकाई सतह के बरक्स लियाकताबाद सुपरमार्केट में सब्जियों के नर्ख इंतहाई कम हो गए। एक शहर वही सब्जियां, लेकिन निर्ख का फर्क जमीन आसमान का। लियाकताबाद की सुपरमार्केट शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। इलाकाई सतह के मुकाबले में सुपरमार्केट में सब्जियां अर्जा कीमतों में फरोख्त की जा रही हैं। 80 रुपए वाले आलू और प्याज सुपरमार्केट में 60 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। 60 वाला टमाटर 40 रुपए फी किलो पर दस्तयाब है। 160 वाली मिर्चें महज 80 रुपए में बेची जा रही हैं। दीगर सब्जियों के निर्ख में भी नुमाया फर्क है। दुकानदार कहते हैं एक ही मंडी से माल लेते हैं, वो क्यों महंगा बेचते हैं, इस पर हैरत है। लियाकताबाद की सबसे बड़ी मार्केट है, सुपर मार्केट। ये सब्जी इधर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा आती है, इधर क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो रेट भी कम रखे हैं। शहरियों ने सुपरमार्केट को सब्जियों की खरीदारी के लिए बेहतरीन मकाम करार दे दिया। इधर थोड़ी बहुत रेट में फ़र्क है, बाकी जो इलाके में दुकानें हैं वो तो यहाँ से बढ़ चढ़ के रेट मांग रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे सस्ती मिलती है, मुनासिब रेट होता है। एक ही शहर में सब्जियों के निर्खों में नुमाया फर्क मुताल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन शाहजेब रजा के हमरा मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। आलमी योम मजदूर के हवाले से म्यूनिसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस की जानिब से रैली निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ महकमों की मजदूर यूनियंस के रहनुमाओं और मजदूरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजदूर के माथे पर मेहनत का पसीना है। आर्ट्स काउंसिल रोड से शुरू होने वाली रैली कराची प्रेस क्लब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई, जहां मजदूर रहनुमाओं ने खिताब किया। मजदूर रहनुमा जुल्फकार शाह बोले, बल्दियाती मुलाजमीन को सूबाई हुकूमत के मुलाजमीन के मसावी हकूक दिए जाएं। सूबाई हुकूमत के मुलाजमीन की तरह लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन को कोई हकूक दिए जाएं। वाटर बोर्ड की प्राइवेटाइजेशन को ख़त्म किया जाए। इकराम खान ने कहा कि वाटर बोर्ड की कारपोरेशन में तब्दीली मुलाजमीन की तबाही होगी, हम मुजाहमत करेंगे। ठेकेदारों को अदायगियों में 25% कमीशन जो है, जब से ये चीज़ सिलसिला चला है तो हमें मुलाजमीन को फ़ंड वाजिबात ग्रुप इंश्योरेंस तक नहीं दिया जा रहा। फायर ब्रिगेड मुलाजमीन के रहनुमाओं शाहिद कादरी का कहना था कि अब तो फायर ब्रिगेड्स की जानें जा रही हैं, शहीद पैकेज दिया जाए। 7 महीने के अरसे के अंदर जो हमारे 3 फायर फाइटर हमारे शहीद किए गए, अभी जो रमज़ान के अंदर वाक़या पेश आया, 4 हमारे साथी शहीद हुए, मगर अफसोस कहना पड़ रहा है कि ये मजदूर भी हैं मगर सिर्फ नाम के मजदूर हैं। इनके यूनिफॉर्म के मसले देख लें, हमारे ओवरटाइम के मसले देख लें, हमारे दीगर परेशानियां बढ़ तो रही हैं। ऐलान किए जाते हैं 25 लाख के 50 लाख के, मगर देने से बिल्कुल कासिर हैं। तो लिहाजा मैं आपके ज़रिए से मुतालबा करता हूँ कि खुदारा फायर फाइटर जो हीरो कहा जाता है उनको तस्लीम भी किया जाए, उनकी ज़रूरतों पूरा भी किया जाए। मजदूर रहनुमा हबीबुर रहमान आवान ने मुतालबा किया कि सॉलिड वेस्ट मुलाजमीन का इस्तेसाल बंद करके हकूक दिए जाए। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया है, उसमें जितने भी अफसर सिंध गवर्नमेंट ने तैनात किए हैं, तनख्वाह से अलावा उन्हें एक तनख्वाह बोर्ड अलाउंस की सूरत में दिया जा रहा है। और मज़दूर जब रिटायर होता है तो उसके लिए कहते हैं फ़ंड नहीं है। ये जुल्म है, इस जुल्म को बंद किया जाए। रैली के मौके पर पाकिस्तान भर के मजदूरों से इजहार यकजहती करते हुए मजदूर दुश्मन फैसलों को मुस्तरद कर दिया गया। कैमरामैन हसन मेहदी के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी ने 1 मई को यौम मजदूर के मौके पर मेहनत कशों से इज़हार यकजहती करते हुए कहा कि मजदूर के हालात आज भी बेहतर नहीं। माहाना उजरत या यौमिया उजरत पर काम करने वाले तबके का इस महंगाई में गुजर बसर मुमकिन नहीं है। उनके मयार ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए मज़ीद इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। राब्ता कमेटी का अपने एक पैगाम में कहना था कि पाकिस्तान के मेहनत कश मज़दूरों के हुकूक़ की जिदोजहद के लिए MQM पाकिस्तान के मज़दूर विंग की कुर्बानियों और काविशें काबिल सताइश हैं। MQM पाकिस्तान का लेबर विंग मेहनत कशों के हुकूक़ के हुसूल के लिए मुसलसल कोशां हैं और आज के दिन ये अज़म करते हैं कि ये जिदोजहद जायज़ हुकूक़ हासिल करने तक जारी रहेगी।
वज़ीर मेहनत और अफरादी कुव्वत सिंध सईद गनी ने यकम मई मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर पैगाम दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी ने मजदूरों के हुकूक खुसूसन ख़वातीन के हुकूक के लिए बहुत काम किया। मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर शिकागो में मरने वाले मजदूरों को खराज अकीदत पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर सबसे पहले मैं शिकागो के शहीदों को खराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ, जिनकी कुर्बानियों की वजह से दुनिया भर के मजदूरों को उनके हुकूक मिलना शुरू हुए। और सबसे पहले 8 घंटे औकात कार का तयन हुआ और उन्हीं की कुर्बानियाँ जिनकी बदौलत आज तक दुनिया भर में मजदूरों को मुख्तलिफ कवानीन के ज़रिए सहूलतें और उनके जो हुकूक हैं वो दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी अगर हम बात करें तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उसके बाद सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब की जो हुकूमतें रही हैं, उन तमाम हुकूमतों ने ख़ास तौर पर मजदूरों के लिए मुख्तलिफ कवानीन बनाए और उनके लिए कोशिश की कि उनको बेहतर सहूलतें और बेहतर मराहत जो है वो मिल सके। ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि जो एक नई चीज़ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आखिरी वफाकी हुकूमत थी 2008 से 13 तक उन्होंने की, कि उन्होंने जो सरकारी इदारे थे उसमें काम करने वाले मजदूरों को उनकी शेयर्स तकसीम किए और उनका उन इदारों का उनको मालिक बनाया, उसमें हिस्सा दिया उनको। और ये बहुत इनकलाबी कदम था जिस पर बहुत सारी रुकावटें भी खड़ी की गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो कामयाबी से चल रहा है जो मनसूबा था। उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये भी अवैध हासिल है कि हमने सूबा सिंध में जो किसान हैं उन्हें अंजुमन साजी का हक दिया और सूबा सिंध वाहिद सूबा है जहाँ पर किसानों की यूनियन जो है वो रजिस्टर्ड हुई है। सूबा सिंध वाहिद सूबा है जहाँ पर हमने जो ख़वातीन काम करती हैं ज़रूरी शोबे में उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अलग कानून बनाया ताकि उनके जो हुकूक है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, उन्हें सहूलियात फराहम की जा सके। सूबा सिंध वो पहला सूबा था जिसने होम बेस्ड वर्कर्स और डोमेस्टिक वर्कर्स जो होते हैं उनके लिए बाकायदा पॉलिसी अडॉप्ट की, पॉलिसी बनाई और उसका ऐलान किया, उसका इजरा भी किया है। सूबा सिंध वो पहला सूबा है जिन्होंने नादरा की मदद से बेनज़ीर मजदूर कार्ड का भी इजरा किया और वो सिलसिला से चल रहा है। वो बहुत एक ज़बरदस्त हमारा मनसूबा है और इंशाअल्लाह ताला उसमें कुछ रुकावटें जो डेवल्यूशन की वजह से नहीं हो सकी कि यूपीआई हमारे पास नहीं है, बल्कि हमारे पास नहीं है। अहम खबर आपको दें, हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान। पेट्रोल की कीमत बरकरार रहेगी। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये कमी की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये कमी कर दी गई है। लाइट डीजल की कीमत में भी 10 रुपये कमी की गई है। इसहाक डार ने ये ऐलान किया है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान। पेट्रोल की कीमत बरकरार रहेगी। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये की कमी की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये कमी कर दी गई है। लाइट डीजल की कीमत में भी 10 रुपये कमी की गई है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने यह ऐलान किया है। अपडेट करें आपको, अहम खबर है हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान। पेट्रोल की कीमत बरकरार रहेगी। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये कमी कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये कमी की गई है। लाइट डीजल की कीमत में भी 10 रुपये कमी की गई है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने ये ऐलान किया है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान। पेट्रोल की कीमत बरकरार रहेगी। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये कमी की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये कमी कर दी गई है। लाइट डीजल की कीमत में भी 10 रुपये कमी की गई है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने ये ऐलान कर दिया है। आपको बताएं कि हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान। पेट्रोल की कीमत बरकरार रहेगी, यह ऐलान किया गया है। तफसीलात जानेंगे सलमान सलीम से। सलमान, बताइएगा जो कीमतें कम हुई हैं अब कितने पे आ जाएंगी? देखिए, बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से जो है वो शहरियों में एक गम-ओ-गुस्सा पाया जा रहा था, जबकि पहली तारीख होते ही हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला किया गया है, जबकि दीगर जो चीज़ें हैं जिसके अंदर हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल और साथ साथ जो मिट्टी का तेल है उसकी कीमतों के अंदर जो है वो कमी का ऐलान किया है। देखें, मिट्टी के तेल में जो है वो 10 रुपये की कमी कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये कमी, जबकि लाइट डीजल की कीमत में जो है वो 10 रुपये कमी की गई है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की जानिब से जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ताहम शहरियों का कहना है कि पहली तारीख को जो सुनने में आ रहा था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, जो पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई गई, इसके ऊपर शहरी जो है वो खुश नजर आते हैं। जी सलमान, ये बताएगा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और इसका इतला कब से होगा?
देखिए आज रात 12 बजे से इसका जो है वो इतलाक कर दिया जाएगा। शहर के मुल्क के जितने भी पेट्रोल पंप हैं वहाँ पर जो है वो कीमतें बरकरार रहेंगी। जी ठीक है सलमान सलीम, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि ईद की तवील तातीलात के बाद सिर्फ 3 रोज ही कारोबार हुआ। ईद की 5 रोजा तवील तातीलात पर दरामदी बिल की तलब पर रुपए की कदर में कमी देखी गई। करेंसी मार्केट की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 37 पैसे महंगा हुआ। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपए 47 पैसे से बढ़कर 283 रुपए 84 पैसे पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए सस्ता होकर 290 रुपए का हो गया। स्टेट बैंक के जखायर 3 करोड़ डॉलर इजाफे से 4 अरब 46 करोड़ डॉलर हो गए। कमर्शियल बैंकों के जखायर 3 करोड़ डॉलर इजाफे से 5 अरब 56 करोड़ डॉलर हो गए हैं। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में यूरो 2 रुपए महंगा होकर 317 रुपए और बरतानी पाउंड 1.5 रुपए इजाफे से 360 रुपए का हो गया। एक हफ्ते में इमारती धर्म 5 पैसे कम होकर 79 रुपए 20 पैसे और सऊदी रियाल 15 पैसे इजाफे से 76 रुपए 60 पैसे का हो गया। माहिरीन का कहना है कि यूएई और सऊदी अरब से मजमूई तौर पर 3 अरब डॉलर मिलने के बाद जखायर में नुमाया इजाफा होगा, जिसके बाद रुपए पर दबाव कम होता दिखाई देगा। अशरफ खान, सिटी 21। अब आपको बताएं कि कराची में सजी ईद मिलन पार्टी में गैर मुल्की तलबा ने शिरकत करके पार्टी को 4 चांद लगा दिए। तकरीब में शरीक मिर्जा इख्तियार बेग ने गैर मुल्की तलबा को पाकिस्तान में तालीम हासिल करने पर सराहा। कराची के मुख्तलिफ शोबेजात में ज़ेर तालीम गैर मुल्की तलबा व तालिबात के लिए ईद मिलन तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अफगानिस्तान, सोमालिया, सूडान, ईरान, कीनिया, शाम, यमन, उर्दन, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के तलबा व तालिबात शरीक थे। गैर मुल्की तालिब इल्मों ने अपनी ज़ुबान में ईद मुबारक का पैगाम भी दिया। Saya mau bilang semua orang hari Idul Fitri Raya dari Indonesia। इसमें हम लोग को बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, बहुत सी इंट्रोडक्शन हो जाती है फॉरेनर स्टूडेंट्स से हमारी, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, खुशी हुई और ये उम्मीद है कि आगे और भी ऐसे इवेंट्स होंगे इंशाल्लाह। ज़माने तरफ ना टोलो खलकोता टोलो दलता हाजिरिन होता अख्तर मुबारक शाह। I am really thankful for the University of Karachi's Honorable VC and the Foreign Student Advisor to organize this event and we enjoyed a lot। तकरीब के दौरान गुफ्तगू करते हुए यमन के कौंसल जनरल मिर्जा इख्तियार बेग ने पाक यमन 2 तरफा ताल्लुकात पर जोर दिया। एक्चुअली यमन के 20-30 स्टूडेंट्स जो हैं वो कराची यूनिवर्सिटीज़ और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में हायर स्टडीज़, हायर एजुकेशन की तालीम हासिल कर रहे हैं। NED यूनिवर्सिटीज़ में भी हैं, दाऊद इंजीनियरिंग में भी हैं और कराची यूनिवर्सिटीज़ में भी है। जामिया कराची के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी और स्टूडेंट एडवाइजर डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा, जामिया कराची में इस वक्त कमोबेश 70 के करीब गैर मुल्की तलबा ज़ेर तालीम हैं। अनफॉर्चुनेटली पीछे काफ़ी अरसे से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से स्टूडेंट्स नहीं आते थे, मगर अब ग्रेजुअली मैंने देखा है कि हमारे यहाँ श्रीलंकन स्टूडेंट्स हैं, हमारे यहाँ ईरानियन स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, अफ़गानिस्तानी स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, और HEC की भी पॉलिसी है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रमोट करें। ये एक अच्छी रिवायत है कि उनके लिए ईद मिलन की तकरीब का एहतमाम किया गया। सब एक साथ जमा हुए, उन्होंने अपनी खुशियाँ मनाई, क्योंकि उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ईद पे अपने प्यारों से दूर होते हैं। तो हम ने ये अरेंजमेंट इसलिए किया ताकि वो अपने आप को अपने मुल्क से तो दूर हैं लेकिन अपनों से दूर ना समझें। HEJ जामिया कराची के मल्टी प्रेस हॉल में मुनक्किद तकरीब में ईरान और यमन के कौंसल जनरल भी शरीक थे। ताहम तकरीब के इख्तिताम पर जामिया कराची के फैकल्टी मेंबरान ने बाआवाज़ बुलंद तालिबे इल्मों को ईद मुबारक का पैगाम दिया। सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।